आप सबको Praise and Power Ministries की तरफ से सलाम. I welcome you all to our Mother's Day service यहाँ से लंदन से. So जो लोग हमें Facebook से या YouTube से या Zoom की तरफ से हमें join कर रहे हैं, आपको बहुत सलाम and welcome to you all. I'm going to start today with Mother's Day with just a thought. आज मैं सुबह चर्च गई हूँ काफी देर के बाद यहाँ पे लंदन में, because as you know कि लंदन में, and I know कि not every country में ये होता है, पर लेकिन आज Mother's Day है लंदन में. तो आज पहली दफा हमारा लॉकडाउन बहुत हुआ है. So I went to church और आज उन्होंने बहुत अच्छी Mother's Day की सर्विस की और सारी जो औरतें थी उनको उन्होंने एक फूल का बुके दिया. So I just want to remind everybody कि एक माँ जो है वो सिर्फ एक वो औरत नहीं है जिसने किसी बच्चे को पैदा किया है. एक माँ वो भी एक औरत है who has helped to nurture, to influence any child. That includes a teacher, that includes a khala, a puppy, anybody, aapki neighbor, anybody. So today, as we rejoice with the Lord and we give thanks to all of the women who are mothers, before I read our scripture, I would just like to give thanks to the Lord for the birth of a new baby. हमारी अपनी ये छोटी सी कलीसिया में से, एक छोटी सी मिनिस्ट्री में से, पास्टर एजाज जो हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं हफ्ते के हफ्ते, he's had a brand new baby daughter. So उनको और उनकी wife किरण को बहुत बहुत मुबारक हो, and God bless their beautiful baby who is now just a few weeks old. And what a lovely day to actually celebrate the birth of this beautiful child. And actually, at the same time, we are celebrating a mother's love, but we're also giving thanks. So let me actually include Adam, who is now 11 years old. हमारे साथ जो आमिर भाई होते हैं, उनकी wife को भी and Adam को भी बहुत बहुत happy birthday and mubarak ho. I want to read Psalm 97, just a little bit, Psalm 100, which is a psalm of thanksgiving. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who has made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name, for the Lord is good. His mercy is everlasting and his truth endures for generations. As I said, today is a day of thanksgiving and an honoring of all women. Whose love is like that of a mother? A mother's love is unconditional. A mother's love never fails. A mother will sit down and वो हमें सुबह से शाम तक अपने बच्चों के लिए दुआ करेगी. ये आपको कुछ, if I ask you who else's love is like a mother's love, to me that is the perfect love of God. It is Jesus who makes intercessions for us. It is Jesus whose love will never fail. It is the Father who loves us unconditionally. So today, whether a woman has given birth or not, we are honoring a mother of any sort. So welcome to our service. And I'm going to pass over, Abi, Zabur aur Geeton ke liye, please, to worship, to Pastor Maqbool Elahi in Karachi. भाई मकबूल आपका माइक ऑन करना है जी. आए हम खुदावंद की हमद में उसकी सताइश में हम आगे बढ़ेंगे और हम खुदावंद की प्रशिश करेंगे. सब खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, उसको हम उसकी तारीफ करेंगे. तो हम ज़बूर गाते हुए खुदावंद की हमद करेंगे. ज़बूर कौन सा? जी. आए हम खुदावंद की ज़बूर निकालें, शुरू करें.
रहीम खुदा मेहरबान 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 रहीम खुदा मेहरबान 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 खुदी मागुत से विचदा मेहरबान 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 वलियाई करना सबना मेहरबान 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 दरियाए खुदा मेहरबान 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 तेरी भी मेहरबान 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 बुजुर्गी दस्ती रंदी भी मेहरबान 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 बचाई तेरी भी मेहरबान 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 बुजुर्ग करेगी मेहरबान 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 तेरा रहीम खुदा मेहरबान 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 हालेलुया प्रेज गॉड खुदा उनका शुक्र है कि हम खुदा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और जितने हमें लाइव देख रहे हैं वो भी हमारे साथ मिलकर खुदा उनकी हम करेंगे खुदा उनकी हम सिताइश करेंगे तो हम एक गीत बैन गजाला से सुनेंगे मदर डे के हवाले से हम एक गीत गाएंगे सो मेरी दरख्वास्त है बैन गजाला से कि वो हमारे साथ मिलकर मदर डे के हवाले से जो है वो हम एक गीत गाना चाहते हैं सब मिलकर आज माओ का दिन है मदर डे है और हम चाहते हैं कि अपनी अपनी माओ के लिए हम गीत गाएं जो कि एक हकीकत में माँ अनमोल तोहफा है हमारे लिए सो हम खुदा उनकी प्रशंसा करेंगे बहन ज़ाला के साथ ज़ाला शुरू करें रिश्तों में अनमोल रिश्ता रिश्तों में अनमोल
हालेलुया, प्रेज गॉड। रिश्तों में अनमोल रिश्ता माँ का होता है, सागर से भी गहरा माँ का प्यार होता है। हकीकत बात है कि माँ की जो मोहब्बत है, उसका जो प्यार है वो अनमोल है, और माँ का कोई भी नेमल बदल जो है वो नहीं है। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। बहन पारस के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हाँ, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो अभी हम बहन नौमा की तरफ जाएंगे और बाइबल रीडिंग जो है वो करेंगे। सो बाकी हिस्सा बहन नौमा को मैं देता हूँ ताकि वो आगे लीड करें। Thank you, Pastor Jay. बहुत ही अच्छा and blessed worship था. Thank you so much. Just like Pastor Vipul ने भी कहा, we're moving on to our sermon. So मैं Sister Seraphine को कहूँगी, please, Genesis chapter 27, verse 8 to 17. Please, Seraphine, आप पढ़ दें. Okay, the reading's from Genesis 27, verse 8 to 17, and it says, "So now, my son, listen to what I have to say and pay attention to what I'm about to tell you. Go to the flock and bring me 2 healthy young goats. I'll prepare some delicious food for your father, just the way he loves it. Then you are to take it to your father so that he can eat and bless you before he dies." But look, Jacob pointed out to his mother, Rebecca, "My brother Esau is a hairy man, but I'm a smooth-skinned. My father might touch me and realize that I'm deceiving him. Then I'll bring a curse upon myself instead of blessing." "My son," she replied, "let any curse against you fall on me. Just listen to me, then go and get some for me." So out he went, got them, and brought them to his mother, who then prepared some delicious food, just as the way the father liked it. Then Rebecca took some garments that belonged to her eldest son Esau, the best ones available, and put them on her younger son Jacob. She put some goat skins over his hands and on the smooth part of his neck. Then she handed the delicious food and bread that she had prepared to her son Jacob. May the blessing be upon this reading. Amen. Amen. Thank you, Seraphine. अब मैं वापस Pastor Makbul Lahi की तरफ जाऊंगी, and Sister Rahat is going to be giving us our word today. Sister Rahat, over to you. God bless your reading and your preaching. आप म्यूट पे हो अभी.
हाँ हो गया बात कर आज मदर्स डे है और मेरी तरफ से सब माओं को सैल्यूट और हैप्पी मदर्स डे तो सब कहते हैं, और ये सैल्यूट हैट्स ऑफ कहना ये बड़ी अजीम और बड़ी बात है। और मैंने हमेशा माँ को एक अजीम और अच्छे रूप में देखा है। गो के माशरे में रहते हुए बहुत सी ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं जिसमें हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को देख लेते हैं, स्पेशली माँ का भी एक दूसरा रूप भी देखते हैं। लेकिन हम आज एक ऐसी माँ के बारे में सीखेंगे जो अपने औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए, बरकत के लिए एफर्ट करती है, और बरकत को लेने के लिए वो क्या कुछ करती है। और मैं समझती हूँ कि हम भी जितनी माएँ हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, बरकत के लिए एफर्ट कर सकती हैं। हमने अभी एक खूबसूरत हवाला पढ़ा पैदाइश में से 27 बाब उसकी 7वीं आयत से 8वीं आयत से, आए मेरे बेटे इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूँ मेरी बात को मान, और जाकर रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे। हम सब ने ये हवाला बड़ा बखूबी सुना और बचपन से तकरीबन सुनते आ रहे हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 2 बेटे हैं, और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इसहाक से खुदा एक वादा करता है कि मैं तेरी नस्ल को सितारों की मानिद बनाऊंगा। तो सितारों की मानिद, रेत के जर्रों की मानिद, लेकिन खुदा उसे एक ही बेटा देता है। आगे जब हम चलते हैं तो 20 साल तक रिबका जो है वो भांज रहती है, और फिर यहाँ हम देखते हैं कि इसहाक जो है वो अपनी बीवी के लिए दुआ करता है, और फिर वो कंसीव करती है। जब वो कंसीव करती है वो इस एहसास को देखती है और वो अपने शौहर से बात करती है कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, और मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर कोई जंग चलती है। तो वो खुदा से भी बात करती है, तो वो इस बात को देखती है और समझती है, और उसे आंसर मिलता है कि तू नहीं जानती कि क्या है, लेकिन 2 कौमें जो हैं तेरे अंदर मौजूद है। और मैं यहाँ पर देखती हूँ कि इब्राहिम से वादा किया, इसहाक को भी 20 साल औलाद के लिए खुदा ने तरसाया, और फिर आखिर को जब उसके यहाँ औलाद हुई तो उसके भी 2 ही बेटे हुए, और जब आगे औलाद हुई तो फिर वहां से जो है वो बरकत जारी हुई, यानी कि तीसरी पुश्त पर जाकर खुदा ने अपने वादा को पूरा किया। अब हम देखते हैं कि खुदा अपने वादे को किस तरह से पूरा करता है, और किस तरह से एक औरत को, एक माँ को तैयार करता है। उसकी माँ उसको कहती है याकूब को। इसमें थोड़ी सी एक बात और बताती चलूंगी ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके कि 2 बेटे हैं, दाऊद से 2 बेटे देता है, एक असाऊ और एक याकूब। तो जो असाऊ है उसमें थोड़ी सी नाफरमानी पाई जाती है, जल्दबाजी पाई जाती है। अब हम ये देखते हैं कि वो जब पीछे 26वें बाब में, तो वो 40 वर्ष का जब होता है तो वो बैरियथा से, हती से 2 लड़कियां ब्याह लेता है, जो इसहाक और रिबका की जान को जो है वो जाने वो बाल बन जाती हैं उसके लिए। तो फिर रिबका ये बात सोचती है, क्योंकि वो एक माँ थी, और अगर उसकी बेटा उसका फर्माबरदार होता, उसकी बात को मानता, तो वो इस परेशानी को ना देखती। और यहाँ पर हम फर्माबरदारी को भी देखते हैं कि हमारे पास जो बेटा याकूब है वो अपनी माँ का फर्माबरदार है, वो अपनी माँ की बात को मानता है। जब उसकी माँ उसे कोई हुक्म देती है तो वो उसको मानता है। उसे कहती है कि बकरी रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे, मैं इनको लेकर तेरे बाप के हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार कर दूंगी। तू
उसे अपने बाप के आगे ले जाना ताकि वो खाए और अपने मजे से पेशतर तुझे दुआ दे। अगर हम यहाँ पर एक एफर्ट को देख रहे हैं, गो के यहाँ पर थोड़ी सी नाइंसाफी बड़े बेटे के साथ हो रही है, लेकिन एक माँ जानती है कि बरकत का हकदार कौन है। मैं इसमें थोड़ी सी बात ये कहूंगी कि माँ की फर्माबरदारी भी मायने रखती है, और माँ जो कुछ अपनी औलाद के लिए करती है वो तो मायने ही रखती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के लिए माँ कितना एफर्ट करती है। तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख मेरे भाई एसाऊ के जिस्म पर बाल हैं और मेरा जिस्म साफ है, शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नजर में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमा लूंगा। अब यहाँ पर याकूब इस बात के लिए परेशान है और अपनी माँ से थोड़ा सा आर्ग्यू भी करता है कि माँ मेरे लिए ये बरकत की जगह अगर लानत होगी, बाप ने मुझे पहचान लिया तो फिर क्या होगा। तो वो परेशान होने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, आए मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि माँ उसे ऑर्डर कर रही है और बच्चे ने ओबे किया और वो चला गया और वो उसके लिए रेवड़ में से बकरियां अच्छी अच्छी लेकर आया। यहाँ पर हम एक और बात को देखते हैं कि बच्चे सम टाइम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते और नाफरमानी कर जाते हैं, और नाफरमानी भी खुदा के हजूर में गुनाह गिना जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब अपनी माँ की बात को नहीं टालता, अपनी माँ की बात को रद्द नहीं करता और उसके हुक्म को मानता है, जबकि वो ये बात को जानता है कि हो सकता है अगर मेरे बाप ने मुझे पहचान लिया तो वो लानत मुझ पर आएगी। यहाँ पर अपनी उसकी माँ एक और कुर्बानी के अल्फाज कहती है कि तेरी जो लानत हो अगर वो तुझे पहचान ले तो वो मुझ पर आए। यानी कि हमारी माएँ हमारे लिए इतना एफर्ट करती हैं। ये कलाम मुकद्दस में सिर्फ एक माँ का जिक्र है, तो जो हमारी दुनियावी माँ है वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करती हैं। और यहाँ पर बड़ी अजीम बात वो कर देती है जो कि हर किसी के लिए कहना नामुमकिन सी बात है, मुश्किल तो है, नामुमकिन सी बात है कि तेरी लानत मुझ पर आए। आगे बढ़ते हैं। तो याकूब उसकी बात को मानता है और वो चाहता है और वो लेकर आता है, और उसकी माँ उसकी बाप का पसंदीदा खाना जो है वो उसके लिए तैयार करती है। और जब वो तैयार करती है और याकूब उसके पास लेकर जाता है, और यहाँ पर एक और बड़ा एफर्ट करती है वो, जब ये बात अपनी माँ से कहता है कि वो मुझे पहचान लेगा, तो वो जिस्म पर उसके बाल बनाती है, वो रेवड़ की खाल लेती है और उसके बदन पर लगा देती है ताकि वो एसाऊ की जो है जिसामत इख्तियार कर लेता है। जब वो अपने बाप के पास लजीज खाना लेकर जाता है तो बाप उसको पहचानता जरूर है, क्योंकि उसकी आंखें धुंधली होती हैं लेकिन उसको देख नहीं पाता, लेकिन वो आवाज से पहचानता है और वो उससे कहता है कि जिस्म तो एसाऊ का है लेकिन इसकी आवाज जो है वो याकूब किसी सुनाई देती है मुझे। लेकिन देखते हैं, तब उसने बाप के पास आकर कहा, मेरे बाप। उसने कहा, मैं हाजिर हूं, तू कौन है मेरे बेटे? याकूब ने अपने बाप से कहा, तेरा पहलौठा बेटा एसाऊ हूं, मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया है, सो जरा उठ और बैठकर मेरे शिकार का गोश्त खा ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुझे ये इस कदर जल्द कैसे मिल गया? यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि एसाऊ गया हुआ है और उसने आना है, और उसके आने से पहले उसकी माँ ने उसके लिए सारा एफर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सब कुछ करने के बाद
वो बरकत रिसीव कर लेता है। और इसहाक जब अपने बेटे याकूब को असाऊ समझकर बरकत देता है, तो जो बरकत के अल्फाज हैं वो याकूब ही को मिलते हैं, क्योंकि बरकत मिलने के वक्त पर वो वहां पर मौजूद होता है। और जब वो बरकत उसका बाप उसे दे रहा होता है तो वो उस बरकत को रिसीव कर लेता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और असऊ आ जाता है और उसे कहता है कि याकूब तो बरकत ले गया। अब यहाँ पर माँ ने जो कुछ किया, माँ ने मेहनत की, सब कुछ किया, क्योंकि वो इस तरह के रोजमर्रा के इसके काम होंगे, करती होगी। उसने जो कुछ भी किया वो अपनी औलाद के लिए किया, और उसने ये सोचकर किया कि मेरे इस बेटे को बरकत मिल जाए। अब माँ ने मेहनत की, एफर्ट किया और याकूब को बरकत दिलाई। और बेटा जो है, जो बड़ा बेटा जब वापस आता है तो वो उसको धोखेबाज करार देता है। जबकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर गौर करें तो मैं देखती हूँ तो याकूब ने तो कोई धोखा ना दिया, याकूब धोखेबाज ना था और वो कोई धोखा नहीं देता, क्योंकि खुदा का मंसूबा था। खुदा का मंसूबा था कि याकूब जो है वो बरकत को लेता। और जब याकूब अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, जब वो शादी करता है तो वो बरकत उसे इस तरह से मिलती है कि उसके यहाँ 12 बेटे पैदा होते हैं। और ये बरकत का सबब जो है वो उसकी माँ बनती है, और माँ उसके लिए एफर्ट करने के बाद ये बरकत उसको मिलती है। और आज हम जो इस दुनिया में सारे लोग कहलाते हैं वो उसी नस्ल में से हैं। और याकूब के बेटों में से जो जोइश है, यहूदी हैं, जो यहूदा है, वो यहूदा का कबीला जो है वो आज भी इस दुनिया में कायम है। बाकी इधर उधर हो गए, लेकिन जो है यहूदा का कबीला वो आज भी कायम है। और ये सब कुछ जो बरकत याकूब को मिल गई, ये उसकी माँ ही की वजह से मिली। थोड़ी सी बात एक और करूंगी कि मैसेज छोटा सा मेरा औलाद के लिए कि अपनी माँ की, अपने बाप की फर्माबरदारी करना सीखें। और जब शरीयत के मूसा ने 10 अहकाम दिए तो उसमें 5वें हुक्म के साथ खुदा ने खूबसूरत वादा भी दिया कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना, तो जिस मुल्क में तू होगा वहां पर मैं तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, सरफराज करूंगा। मेरे अजीजों, ये हमारे पास बड़ा खूबसूरत खुदा का वादा है और हुक्म है, और हम इस वादे को, इस हुक्म को अगर हम इसके ऊपर अमल करते हैं तो इस वादे को भी लेते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारी उम्र भी दराज होगी और हम तंदुरुस्ती को भी लेंगे, बरकत को भी लेंगे। और माँ बाप की जो फर्माबरदारी है वो हमारे लिए बरकत का बाइस है। आज चूंकि मदर्स डे है और सारी खुशियाँ हम अपनी माँओं के लिए, उनके लिए दुआएं और खूबसूरत उनके लिए शुक्रगुजारियाँ, खूबसूरत अल्फाज हमारे उनके लिए। और जो बच्चे हैं वो, उनके लिए ख़ास एक मेरा मैसेज हमेशा होता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी फर्माबरदारी करें। अगर बरकत लेना चाहते हैं तो अपने माँ और बाप की इज्जत करें। अगर आप इज्जत करेंगे तो खुदावंद जो आसमानी है, जो हमारा कुल कायनात का बाप है, जो हमारी कायनात को चलाता और हमें भी चलाता है, वो हमें बरकत देगा। और मैं समझती हूँ कि अगर बरकत लेनी है, ये औलाद के लिए मेरा मैसेज है, तो अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दें।
خواہ وہ بڑے ہو گئے ہیں, خواہ وہ بڑھاپے کی طرف ہیں, خواہ وہ ابھی چھوٹے ہیں, جوان ہیں, جہاں کہیں بھی آپ کی ایج ہے, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو میرا یہی میسج ہے اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں, اور اپنی ماں کی اسپیشلی فرما برداری کریں. ماں کی فرما برداری کریں گے تو وہ باپ سے برکت کو لے کر دے گی, اور جو بچے دونوں کی فرما برداری کرتے ہیں وہ تو الہی برکات کے حقدار ہیں. ہم ایک چھوٹا سا میں ایک کورس گانا چاہتی ہوں, میرے پاس اگر اجازت ہو تو میں صرف ایک لائن گاؤں گی, جو بے ادبی ماں جو بے ادبی مادی کر دے کدے نہ بخشے جاون مادی عزت جیڑے کر دے جنتی ڈیرے لاون. میرے ربا تیری شانہ تیرے صدقے جاواں, میرے ربا تیری شانہ تیرے صدقے جاواں. جنتا دے پھل خوشبو لے کے, جنتا دے پھل خوشبو لے کے تو بنائی ماں, میرے ربا تیری شانہ تیرے صدقے جاواں, میرے ربا تیری شانہ. مادہ دل سمندروں ڈونگا کون دلاں دیا جانے, ماں دے دل نو او جانے جو رب نو پہچانے, ماں دے دل نو او جانے جو رب نو پہچانے. رب تے ماں دے پیار دا دیوا, رب تے ماں دے پیار دا دیوا بلدا ہے ہر تھاں, میرے ربا تیری شانہ تیرے صدقے جاواں, میرے ربا تیری شانہ صدقے جاواں. Happy Mother's Day to all of mothers. God bless you. Thank you. Thank you so much, Sister Rahat. That was a really blessed message. Thank you so much. واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی فرما برداری جو ہے it leads to such a blessing. یعقوب definitely چنا ہوا تھا, پر اگر ماں بیچ میں انٹرسیڈ نہ کرتی اور اس کو نہ کہتی تو پھر کیا پتا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ڈیسٹنی فلفل کر سکتا ہے. اور ہم اکثر بچے ہوتے ہیں ہم ماں کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں, پر لیکن ان کی جو وزڈم ہوتی ہے وہ واقعی خدا کی دین ہوتی ہے. سو ہمیں ڈیفینیٹلی جو بھی عمر ہماری ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار, پر ڈیفینیٹلی ماؤں کے فرما بردار تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. سو تھینک یو سو مچ, دیٹ واز سچ اے بلیسڈ میسج. گاڈ بلیس یو آل. اینڈ جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اب we're coming to the end of our service, پر آج کا دن جو ہے وہ ماں کے نام کا دن ہے. اور میں سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ماں صرف وہ ماں نہیں ہے جس نے جنم دیا ہے, ایک ماں وہ بھی ہے جو بھی جیسے ہماری خالہ, جیسے ہماری پھوپھیاں, سب کچھ. اینڈ آج I'm not a mother, a natural mother, پر لیکن آج مجھے 2-3 فون کال آئے ہیں اپنے سارے بھائیوں کے, بہنوں سے, کزن کے بچوں سے, who actually do think that کہیں نہ کہیں
किसी ना किसी तरीके से we mothers who are not mothers जिन्होंने जन्म नहीं दिया, we actually help to bring children up. और ये actually खुदा का एक ऑलमोस्ट कमांड है औरतों के लिए कि आप जिस भी लेवल पे हो, एक औरत जो है वो चुनी हुई इसलिए कि हम बच्चों को नर्चर कर सकें. अगर आप संडे स्कूल में हैं, अगर आप टीचिंग में हैं, सो हमें ये गौर करना है कि अगली जनरेशन जो है उसको हम किस तरह ब्रिंग अप करते हैं. मोर एंड मोर यही होता है कि अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो हैं वो टीवी में लगे रहते हैं, अपने खिलौनों में लगे, वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं. But if one thing has happened, especially England में, जो सारे बच्चे जो घर रहे हैं over lockdown, वो माँओं का जो एक मुकाम है, जो दर्जा है, it's become more and more evident कि माँ जो है वो अपने बच्चों को किस तरह घेर लेती है, जैसे खुदावंद अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे संभाल लेता है. That's the point of a mother. So God bless you all. Pastor Ji, I'm handing over to you. अगर आपने कुछ कहना है या कुछ ऐड करना है before we come to the end of our service. Pastor Mehboob. डेफिनेटली यस, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले मैं नॉर्मा आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी खूबसूरती से मीटिंग को रन किया, और राहत का भी बड़ी खूबसूरती से खुदा के कलाम को पेश किया, जिसमें माँ का किरदार उन्होंने शेयर किया है कि किस तरह माँ जो है वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है. तो बीइंग बाप होते हुए मैं इस तरह से सोचता हूँ कि द मदरहुड इज़ लाइक अ फ्यूचर डिज़ाइनर. वो अपने हस्बैंड का भी फ्यूचर डिज़ाइन करती है और अपने बच्चों का भी फ्यूचर डिज़ाइन करती है, और फ्यूचर को वो पहले रखती है. जब बच्चे पैदा होते हैं तो फिर वो देखती है कि उनका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, यहाँ तक कि उसके कलर का भी करती है कि उसको गोरा होना चाहिए, उसका पाउडर लगाती है, लुक आफ्टर करती है, खाना खिलाती है. मुझे याद है जब अभी रिसेंटली दिस ईयर हमने अपनी मदर को खोया, वो खुदावंद में सो गई 25 नवंबर को. तो आज जो है वो मेरे हिसाब से मेरा जो है पहला ये मदर डे है अपनी माँ के बगैर, और हम उसको मिस करते हैं, लेकिन जो मिस करते हैं वो हम अल्फाज में तो बयान नहीं कर सकते. इट्स योर फीलिंग. लेकिन मुझे अभी तक याद है कि माय मदर वाज अ गुड फ्यूचर डिज़ाइनर. वो क्या करती, वो हमारे लिए फ्यूचर डिज़ाइन करती थी, पूरा ख्याल रखती थी, सफाई सुथराई का ख्याल रखती, खाने पीने का ख्याल रखती, और किसने क्या किया क्या नहीं किया, किसने क्या खाया क्या नहीं खाया, इसका रंग भी गोरा होना चाहिए, वो अच्छे मल के जो साबुन से नलाया करती, और वो बड़े बहुत कुछ तो गोदो करती. तो मदरहुड जो है ना, इट्स रियली इसको मैं जैसे मैंने बताया कि एक फ्यूचर डिज़ाइनर है, गुड फ्यूचर डिज़ाइनर है. तो हमें इसके ऊपर रिलाय भी करना चाहिए और ट्रस्ट भी करना चाहिए. देयर सो मैनी यंग चिल्ड्रन हैं जो अपनी मदर्स को इस तरह से वो थोड़ा सा कम तर समझते हैं कि शायद वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है. और आज जो है मदर्स जो हैं वो एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि हम जो हैं वो मॉडर्न दुनिया में पैदा हुए हैं. वी आर मॉडर्न चिल्ड्रन एंड वी आर लिविंग द मॉडर्न वर्ल्ड. इट्स नॉट द ट्रू. You are modern because of her, because she actually designed your future. That's why you are modern. तो ये सोचने की बात होती है कि अगर मेरी माँ बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ थी, वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उसने मेरा फ्यूचर इस तरह से देखा, डिज़ाइन किया कि आज मैं यहाँ इंग्लैंड में बैठा हूँ, यहाँ खिदमत भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, और मेरे पास बच्चे भी हैं. तो ये डिज़ाइन किसने किया? ये उसी ने किया. उसी ने स्कूल भेजा, और उसी ने मुझे तैयार करके स्कूल भेजना, नाश्ता भी खिलाना, और जब मैंने वापस घर में आना तो वापसी पे मेक श्योर करना कि वो आने वाला है, उसके लिए कुछ खाने को हो, भले वो कुछ खाए या ना खाए, लेकिन बच्चों की वो फिक्र करती. तो ये मदरहुड है. हालेलुया. तो इसमें ये मदरहुड का किरदार हम खुदा में भी देखते हैं. गॉड इज अ गुड मदर इज वेल. वो कहता है अगर शीरखार अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा. तो ये बहुत बड़ी बात है. तो हमें जो यंग चिल्ड्रन है उनके लिए मैं ख़ास मैसेज देना चाहता हूँ कि बी केयरफुल व्हेन यू थिंक अबाउट योर मदर कि शी इज़ अनएजुकेटेड, या वो अनपढ़ हैं, या वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, वो पीछे रह गई हैं, या वो अच्छी तरह से तैयार नहीं होती. तो जो कुछ भी वो आपको नज़र आता है वो आपकी वजह से है.
اگر وہ اچھے طریقے سے تیار بھی نہیں ہو پاتی تو وہ آپ کی وجہ سے ہے، چونکہ وہ سارا دن تو آپ کے لیے لگی رہتی ہے، تو بچوں کے فیوچر کے لیے لگی رہتی ہے، آپ کا فیوچر ڈیزائن کرنے کے لیے، آپ کے کھانا بنانے کے لیے، تو ساری جو خدمت وہ کرتی ہے. تو آئی تھنک کہ مدر جو ہے یہ بہت زیادہ خدمت کرتی ہے گھر میں، اور اس کو وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. تو ہم جو فادرز ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ یو مسٹ اپریشیٹ دی ایفرٹ جو گھر میں مدرز کرتی ہیں، جو پکاتی ہیں اور آپ کے لیے کھانا بناتی ہیں، صفائی ستھرائی کرتی ہیں اور پوری فیملی کو بنا کے رکھتی ہیں، ان کا فیوچر ڈیزائن کرتی ہے. تو شی از اے ریئلی گڈ فیوچر ڈیزائنر. ہم اس کے لیے اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو آخر میں چاہوں گا کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں گے، اور دعا کے ساتھ جو ہے وہ اس میٹنگ کو ختم کریں گے. ہاللیلویہ، پریز جیسس، ہاللیلویہ ہاللیلویہ. جلال سے بڑے زندہ جلالی عثمانی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف تیری حمد کرتے ہیں. آج اس مدر ڈے کے موقع پر خدا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان تمام مدرس کو، ان کی ساری سروسز کو اور ان کی ساری خدمات کو. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے دنیا میں مدر بنائی تاکہ وہ آنے والی نسل کا فیوچر جو ہے وہ ڈیزائن کر سکے. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف. جتنے بھی آج اس مدر ڈے کو منا رہے ہیں خدا بخش دے کہ خدا وہ تو اسے برکت حاصل کریں، تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت حاصل کریں. تیرا شکر ہو، تیری تعریف. جتنے بھی خدا ہمارے ساتھ زوم پر حاضر ہیں ان پر بھی تیری بڑی برکت چاہتا ہوں، اور جتنے بھی ہمیں فیس بک پر دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں. کہ ساری ضروریات کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام دنیا کی مدد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو طاقت دے، ہمت دے، تاکہ اسی طرح اپنے گھرانوں کا فیوچر ڈیزائن کرتی رہیں اور آگے بڑھنے میں اپنے بچوں کی مدد کریں، رہنمائی کریں. ہاللیلویہ. خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تعریف برے کی یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اور کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین آمین. آخر میں پھر تمام مدرس کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس مدر ڈے کے موقع پر، اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت ہے. اگلے سنڈے ہم پھر 2 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لائیو سروس لے کے. یہ ہماری لائیو سروس ہوتی ہے ایوری سنڈے، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو جاری رکھیں تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے مل کے برکت پاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں اس برکت کو جاری رکھا جائے. ہاللیلویہ. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے. تو اگلے سنڈے تک کے لیے خدا حافظ.